A very good morning, class 2. Here we are going to start lesson number 8, that is titled as sentence formation. Okay, and here this is Rashmi Tiwari. I hope you all have understood the lesson taught so far and prepared them also. Okay, so let us discuss what we have to do or read in this chapter. We will get to know more about the sentences. Okay, so let us start. There are some pictures given over here. As you can see, the first one is given for going to school and second one is given for football with friend. Okay, so read this group of words. Now, do these words make complete sense? No. Why? क्या जो ऊपर वर्ड्स दिए हैं इनका कोई मतलब होता है? गोइंग टू स्कूल, फुटबॉल विथ फ्रेंड, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा ना, बिकॉज these words are not arranged systematically and these words are not forming any sentence. Okay, because they are incomplete sentences. Some words have to be added to them to form a sentence. Okay, so now read these. First one, I and my sister are going to school. So the different words are arranged properly and these are meaningful sentences, so we can say that this is a proper full sentence. Okay, second one is given, Atul is playing football with his friend. Okay, means अतुल अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा है. तो अगेन इसकी भी मीनिंग बन रही है, सो डेट्स दिस इज ऑल्सो अ meaningful sentence. Okay, so these groups of words now make complete sense. तो अभी जो हमने ऊपर देखा था वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे थे, कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे थे, इसलिए वो सेंटेंस नहीं थे. लेकिन अभी जो हमने 1 और 2 पढ़ा इसमें वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज हैं और इसका एक मतलब निकल रहा है. सो दीज आर प्रॉपर सेंटेंसेस. ओके, so coming to the definition of sentence, we can say a group of words that makes a complete sense is called a sentence. Okay, so all sentences begin with a capital letter. There are some particular points to keep in your mind कि जब भी sentence हम शुरू करते हैं तो उसे capital letter से शुरू करते हैं. Okay, and the second one is many sentences end with the full stop. और बहुत से सेंटेंसेस होते हैं जिनको ख़त्म हम करते हैं तो उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं. ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड द सेंटेंसेस. नाउ इट्स आर टेस्टिंग टाइम. ओके, the question number 1 is given over here. Draw lines from column A to column B to make sentences. Okay, there are two columns given over here, column A and column B. You have to match them with each other to make different meaningful sentences. Okay, as you can see, I have drawn arrows one to another to make sense meaningful sentences. Okay, as you can read A, the sun rises in the east every morning, means हर सुबह पूरब में सूर्य उदय होता है. बी है, आलोक सिस्टर इज लर्निंग हाउ टू डांस, आलोक की बहन सीख रही है कि कैसे डांस किया जाता है. सी है, आई रीड माई लेसन्स एवरी डे, मैं अपने लेसन्स को, अपने पाठ को हमेशा याद करता हूँ. ठीक है. Coming to the question number 2, that is put a tick on the sentences and a cross on the ones which are not sentences. तो आपको टिक करना है, सही का टिक करना है जो सेंटेंसेस सही हैं, क्रॉस करना है जो सेंटेंसेस गलत हैं. ओके, ए है, आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 8 o'clock. तो इट्स अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड फुल स्टॉप इज ऑल्सो गिवन एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, सो वी कैन से दिस इज a correct sentence. So we would put tick in front of this sentence. Okay, B बताइए shut, it is not a sentence, it is a word, so we will put a cross in front of it. C, I ate, तो ये भी सेंटेंस नहीं है तो हम क्रॉस लगाएंगे. डी है, मिस्टर मेहता एंड हिज डॉग्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, मिस्टर मेहता और उसके हिज डॉग और उसका उनका जो कुत्ता है वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं.
तो टेक, ये तो सेंटेंस है। ई है अभिजीत कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, अभिजीत बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है, तो ये भी एक सेंटेंस हुआ, तो हम टिक करेंगे। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एड suitable word to these groups of words to make complete sentences। ओके, आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसके बाद कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो कुछ प्रॉपर वर्ड्स के यूज से इनको मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ए हमने बनाया, माई सिस्टर इज़ वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस। बी है, आवर टीचर इज़ पोलाइट एंड स्ट्रिक्ट। सी बनेगा, वेयर डू यू लिव। डी होगा, माई ग्रैंड मदर टेल्स मी अ स्टोरी एवरी नाइट। ई है, वी प्लेड इन द पार्क। ओके, सी डी ई कर लिया हमने। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि दीज सेंटेंसेस हैव गॉट ऑल जम्बल्ड अप, री राइट देम करेक्टली, टू नॉट फॉरगेट टू यूज़ कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ आपको कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप्स का यूज़ करना है, और जम्बल्ड वर्ड्स जो दिए हैं इधर उधर करके उनको अरेंज करके प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। ओके, सो ए वाला हम सेंटेंस बनाएंगे, वी वॉन द क्रिकेट मैच। बी क्या होगा, माई मदर कुक्स गुड फूड। सी क्या होगा, आई लव टू पेंट। डी, एलिन एंड वायम आर ट्विंस। ई क्या होगा, माई अंकल लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। एफ है, द स्काई इज ब्लू। जी होगा, द बॉयज बैग हैज बीन लॉस्ट। एच है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आई है, रीना हैज़ अ पिंक बो ऑन हर ड्रेस। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, that is page number 42. There is a picture given over here and you have to color it. This is your homework, and 2 sentences are made according to the given picture. The point sentence 1 is 2 boys are playing carom. क्या खेल रहे हैं बच्चे? कैरम. ओके, सेकेंड सेंटेंस है, दे बोथ आर वेरी हैप्पी विथ ईच अदर. दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं. सिक्स्थ भी आपका होमवर्क है, आपको रीड द सेंटेंस एंड ड्रॉ ए पिक्चर. आपको यहाँ सेंटेंस दी है, आई एन्जॉय प्लेइंग इन द रेन. तो आपको एक लड़का बारिश में भीगता हुआ बनाना है, खेलता हुआ, बारिश में भीगता हुआ, कैसे भी आप बनाओगे, ठीक है, जैसे भी आपको आता है. नाउ the question number 7 given on the page number 43 is, make sentences using the words given in all the 3 columns. Write them in the blank spaces given below. Okay, there are 3 columns given at the top of this page and you have to arrange them, you have to match them to make a sentence. Okay, so we have made it. A बनाया, open the door. B होगा shut the window. C clean the room. D read your books. E polish your shoes. F answer the questions. Okay, means कॉलम 1 वाले को कॉलम 2 वाले से मैच करके आप कॉलम 3 वाले के एक वर्ड से मैच करोगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा. अब आपको उन वर्ड्स को अरेंज करना है जो कि सूटेबल हो किसी वर्ड्स के साथ. अंडरस्टूड? सो वी आर ऑन पेज नंबर 44. यूज़ ऑफ नॉट इन सेंटेंसेस. अब हम नॉट का यूज़ सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं. ओके, सो रीड दीज एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन, आई एम हंग्री. मैं भूखा हूँ. और अगर हमें इसके साथ नॉट लगाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ. सेकेंड एग्जाम्पल आप लेंगे, द डोर इज़ ओपन, मीन्स दरवाज़ा खुला है. द डोर इज़ नॉट, और अगर इसमें नॉट लगाएंगे तो क्या बनेगा, द डोर इज़ नॉट ओपन, दरवाज़ा खुला नहीं है. Understood? So coming to some practice question, that is rewrite these sentences by adding not to them. Okay, आपको सिंपल सेंटेंस दिए हैं उसमें आपको नॉट लगाना है. We are ready, तो क्या होगा, we are not ready. B है I am late, नॉट लगाएंगे तो क्या होगा, I am not late. C है विनीत एंड सुमिता ट्विंस, तो आप क्या लगाओगे, विनीत एंड सुमिता नॉट ट्विंस. डी है नीलू इज़ टायर्ड, आप क्या लिखोगे, नीलू इज़ नॉट टायर्ड. ठीक है, अब फिर से ये टिक और क्रॉस वाला क्वेश्चन है, आपको सही के सामने टिक करना है, गलत के सामने क्रॉस करना है.
देखना है कि नॉट का यूज़ कहाँ पे सही से यूज़ हुआ है. ओके. ए है वी वर टॉकिंग नॉट, तो वी वर नॉट टॉकिंग होना चाहिए, तो यहाँ पे गलत होगा तो क्रॉस लगाएंगे. बी है आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ, ये सही है तो आप टिक करोगे. सी है सुब्रत नॉट गोइंग टू लंदन इज़, ये तो बिल्कुल नहीं है तो इसको क्रॉस करोगे. डी है नॉट द ड्रेस क्लीन इज़, ये तो गलत है, क्रॉस करेंगे आप. ई होगा द बेबी इज़ नॉट स्लीपिंग, बच्चा सो नहीं रहा है, तो ये भी सही सेंटेंस है, आप इसको टिक करोगे. ओके. आई नो कि वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है बच्चे, लेकिन आप सबको समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा. ओके. और आपको हमने पेजेस, डिफरेंट पेजेस भी प्रोवाइड करा दिया है ताकि आप इमेजेस की हेल्प से अपनी बुक को फिल कर लेंगे. अंडरस्टूड. सो देयर इज़ अ कॉम्पोजिशन गिवन हेयर ऑन द टॉपिक दैट इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और आपको 8 सेंटेंसेस लिखने हैं. कुछ हेल्पिंग सेंटेंसेस दिए हैं, उनकी हेल्प से आपको 8 सेंटेंसेस बनाने हैं अपने फ्रेंड के ऊपर. ठीक है. सबका एक बेस्ट फ्रेंड होता है, उसी के ऊपर लिखना है. तो हमने यहाँ पे एक नाम दिया है, आप अपने फ्रेंड का कुछ भी नाम दे सकते हो, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है. ठीक है. अगर लड़की है तो वहाँ पे ही की जगह आप शी कर देना, और लड़का ही है तो आप जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिख देना. ठीक है. अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे मैंने दिया है वैसे आप लिख दोगे. अंडरस्टूड. I'm going to call out each sentences one by one. Okay. The first sentence is Sunny is my best friend. Second is he stays in Chandrapur. Third है his birthday falls on 14th May. Fourth है he studies in Air Force School. Fifth है we spend our most time together. Sixth है I like him because he is very intelligent. Seventh है he likes the chocolates but dislikes milk. उसे चॉकलेट्स तो पसंद है लेकिन उसे दूध बिल्कुल नहीं पसंद है. 8 है हिज फेवरेट कलर इज़ येलो, उसका फेवरेट कलर येलो है. ओके. और यहाँ पे साइड में देखिए ब्लैंक स्पेस दिया है जहाँ हमने लिख रखा है ड्रॉ इट. आपको यहाँ पे एक फ़नी सी पिक्चर ड्रॉ करनी है, जैसा आप बना सकते हो अपने उस बेस्ट फ्रेंड का. ओके. सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. देयर इज़ नो कॉपी वर्क फॉर दिस लेसन बिकॉज there is so much writing work is given in this lesson for your book. Okay. So I have not given any copy work for this lesson. Okay. That's all for today. Thank you. Keep learning, keep revising. Good day.